નમસ્કાર, કચ્છ ભૂમિ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। પ્રાગ પર એન્કરવાલા અહિંસા ધામ ખાતે 2 દિવસીય કાર્યક્રમના સમાપને અહિંસા એવોર્ડ એનાયત કરાયો। મુન્દ્રા તાલુકાના પ્રાગપર ગામે ભગવાન શ્રી મહાવીર પશુ રક્ષા કેન્દ્રના પ્રેરક શ્રી જાદવજી રવજી ગંગર એન્કરવાલા અહિંસા ધામ ખાતે ભૂરક્ષા, જલ રક્ષા, જીવ રક્ષા અને પર્યાવરણ રક્ષા તેમજ જીવદયાના 2 દિવસીય અહિંસા યજ્ઞનો આજે સમાપન થયો હતો। કાર્યક્રમના પ્રથમ દિવસે સંતોના આશીર્વાદમાં શ્રી ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમારંભના પ્રમુખ ડોક્ટર મહેન્દ્ર જૈન, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી દિગંબર જૈન સમાજ દિલ્હી, અતિથિ વિશેષ તરીકે શ્રી પીપી ભટ્ટ, નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિ ગુજરાત અને ઝારખંડ હાઈકોર્ટ વડોદરા, શ્રી અશોકભાઈ કેશવલાલ સંઘવી, જીવદયા પ્રેમી ભુજ ફતેહગઢ, શ્રી ઝવેરચંદભાઈ અનિલભાઈ આણંદજી ખોના, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ભદ્રેશ્વર ટ્રસ્ટ ગાંધીધામ, શ્રી ચેતનભાઈ લક્ષ્મીચંદ પોલડિયા, મીના બજાર બાંદ્રા, શ્રી નીતિન શાંતિલાલ વોરા મુંબઈ, જૈન સંગઠન સમસ્ત મહાજન તારદેવ ભાવનગર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમનું વિશેષ સન્માન કરાયું હતું। પ્રથમ દિવસે માંડવીના ધારાસભ્ય અનિરુદ્ધભાઈ દવેનું સંસ્થા દ્વારા સન્માન કરાયું હતું। તેમણે સંસ્થાને સાથ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી। બીજા સેશનમાં પ્રથમ દિવસે અહિંસાધામ નંદી સરોવર ભગવાન મહાવીર ગોકુળધામ સૌએ નિહાળ્યું હતું। આ તકે ભગવાન મહાવીર ગોકુળધામ ખુલ્લું મુકાયું હતું, જેમાં નામી અનામી દાતાઓએ માતબર યોગદાન આપ્યું હતું। મહંત શ્રી વિજય બાપુ, ગુરુ શ્રી જીવરામ બાપુ, સત્તાધાર ધામ અમરેલી, ન્યાયાધીશ કે તાતેડ ચર્ચગેટ મુંબઈ, કચ્છ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર શ્રી કલ્પેશસિંહ ગોસ્વામી વગેરે સંસ્થા અને દાતાઓની સેવાઓને બિરદાવી હતી। પ્રથમ દિવસે ખાસ આચાર્ય શ્રી પ્રકાશજી દુબે મલાડ મુંબઈ દ્વારા સુંદરકાંડ પાઠ તથા પધારેલ અતિથિઓ સાથે જ્ઞાનગોષ્ઠી અને અનુભવોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું। દ્વિતીય દિવસ રવિવારે સવારે સંતોના આશીર્વાદ વક્તા તરીકે પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકર, ગૌવંશ આધારિત ખેતી, અમરાવતી ઝીરો બજેટ નેચરલ ફાર્મિંગના પ્રણેતા પ્રખ્યાત કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અતિથિ વિશેષ મહેમાન તરીકે ન્યાયમૂર્તિ શ્રી અંબાદાસ હરિભાઈ જોશી, ઔરંગાબાદ મુંબઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયથી સેવા નિવૃત્ત તથા પૂર્વ લોક આયુક્ત ગોવા રાજ્ય, શ્રી હેમેન્દ્રભાઈ મહેતા, એક્સ એમએલએ બોરીવલી, શ્રી કેતનભાઈ નાણાવટી ગાંધીનગર, એડવોકેટ અવનીશ જયંતિલાલ ઠક્કર ભુજ વગેરે અબોલ જીવોની અહિંસા ધામમાં થતી સેવાઓ માંધાતાઓ વધુ યોગદાન આપે તેવી અપીલ કરી હતી। શ્રીમતી નેહલબેન ગઢવી, સુપ્રસિદ્ધ સંવેદનશીલ વક્તા, સામાજિક કાર્યકર ભાવનગર, શ્રી લીલાધરભાઈ ઠક્કર, રામરોટી છાશ કેન્દ્ર ભુજ, શ્રી જીતેન્દ્ર ઝા, સાયકલ પર અખંડ ભારત યાત્રા મધ્યપ્રદેશ, શ્રી કેવીઓ ટ્રસ્ટી ફાઉન્ડેશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડ ટ્રસ્ટી શ્રી ભરતભાઈ પ્રેમજી ગળા, દાદર નાના ભાડિયા, તેઓની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ બદલ સંસ્થા દ્વારા અહિંસા એવોર્ડ એનાયત કરાયો હતો। આ 2 દિવસના સંપૂર્ણ કાર્યક્રમના સૌજન્ય દાતા તરીકે શ્રીમતી મંજુલાબેન મહેન્દ્ર સંધોઈ, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, રામદેવ ગ્રુપ, વિલે પાર્લા ટોળા, શ્રીમતી રીટાબેન હરેશભાઈ વોરા, ભાનુ પ્રોપર્ટીઝ બોરીવલી ગેલડા, શ્રીમતી દીપ્તિબેન રૂપેશભાઈ સંધોઈ, જીલ ઇન્ફોટેક કાંદિવલી કપાયા અને એક સદગ્રસ્તનો સહયોગ સાંપડ્યો હતો। 3000થી વધુ અબોલ, અશક્ત, અપંગ, નિરાધાર પશુ પક્ષીઓને આશ્રય આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેની સૌએ નોંધ લઈ આ સેવાને પ્રેરણારૂપ ગણાવી હતી। આ પ્રસંગે ઠાકરશ્રીભાઈ શેઠિયા ભુજપુર, કોમલ છેડા બિદડા, ગ્લોબલ સંસ્થાના ગોવિંદભાઈ મંગે, વિપુલભાઈ રાંભિયા મોટીરાયણ, વિરાણીયા ગામના સરપંચ શક્તિસિંહ જાડેજા, ગ્લોબલ કચ્છ સંસ્થાના મહેન્દ્રભાઈ ગડા, સીએ જિજ્ઞેશભાઈ દેઢિયા ગઢશીશા, સમાજસેવી મહિલા જિજ્ઞાબેન શેઠ, શિક્ષક આચાર્ય નારાયણભાઈ ગઢવી, નિવૃત્ત શિક્ષક કિશોરસિંહ ચુડાસમા, રાજેશભાઈ સોરઠિયા બિદડા વગેરે સામાજિક રાજકીય આગેવાનો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અહિંસાધામ સંસ્થાના મહેન્દ્રભાઈ સંધોઈ, હરેશભાઈ વોરા, ગિરીશભાઈ નાગડા, રાહુલભાઈ સાવલા, ડાયાલાલભાઈ પટેલ વગેરે નામી અનામી સંસ્થાના કાર્યકરો, ડોક્ટરો, વોલિયન્ટરોએ પોતાની સેવાઓ આપી હતી। કચ્છ તેમજ દેશભરમાંથી સામાજિક લેવલે કાર્યો કરતા વડીલો, યુવાનો, બહેનો, રાગપર તેમજ આસપાસના ગામ શાળાઓના શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સંસ્થાની સેવાની વિશેષ નોંધ લીધી હતી। मेरा नाम जस्टिस कमलेश्वर तातेड़ है। मैं बॉम्बे से हूँ। मैं 2021 में रिटायर हुआ हूँ। फिर उसके बाद में मैं चेयरपर्सन महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन था। अभी फ़िलहाल मैं चेयरपर्सन द कमिटी टू मॉनिटर एनिमल लॉज इन महाराष्ट्र स्टेट हूँ। यहाँ अहिंसा धाम में आके ये पता चला कि दुनिया में कितना बड़ा काम होता है। आज महेंद्र भाई और उनकी टीम यहाँ देखा कि इस एंकर अहिंसा धाम के अंदर 3000 जानवर हैं और उनकी व्यवस्था इस हिसाब से कर रहे हैं कि कहीं बाहर देखने को नहीं मिले। इतना ही नहीं तो इन्होंने उसके अंदर जो हैंडीकैप जानवर हैं उनके लिए स्पेशल सेक्शन बना के रखा हुआ है। जो अनाथ छोटे बच्चे हैं गाय के, उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी की है
कि उनको बॉटल से दूध पिलाने के बजाय उन्होंने दूसरे गाय को ट्रेन किया कि वो गाय उन सब बच्चों को दूध पिला सके। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो उन्होंने 2 दिन का सम्मेलन रखा, इसके अंदर काफ़ी लोग आए। यही सच्ची बात है सेवा करने की और मोटिवेट करने की। क्यों कि आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट दो, टीवी पे दो, इतना आदमी मोटिवेट नहीं होता जितना यहाँ खुद आता है, देखता है कि क्या काम हो रहा है और अपन जानवर के लिए, गौ माता के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ आए हुए जो इंसान यहाँ आए हुए, अगर वो यहाँ से जाके अगर 2-2, 3-3 या 5-5 जनों को भी अपने साथ जोड़ लेवे तो रियल में वो गौ सेवा काम हो सकता है। और ये काम आज यहाँ एंकर अहिंसा धाम में हो रहा है। आज ये इन्होंने 600 एकड़ लैंड के अंदर इतना बड़ा किया है, इसको मैनेज बहुत अच्छे से किया हुआ है। इतना ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको बुलाते हैं, उनको यहाँ पे सब सिखाते हैं। सच्ची बात वही है कि आज अगर अपन बच्चों को सिखावे, उनको गौ माता के लिए तैयार करें, उनको गौ माता का प्रेम बतावे, उनका महत्व बतावे, वही फाउंडेशन है कि जो आगे जाके अपने समाज में ऊपर ला सकता है। इसलिए इनको बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और मैं तो देखता हूँ जब भी मेरे को चांस मिले डेफिनेटली यहाँ आऊँगा मैं। थैंक यू। એટલે જનરલી મને જોઈને લોકો એવું માનતા હશે કે હું મોટિવેશન આપવા માટે આવી છું, પણ મને એવું લાગે છે કે હું મોટિવેશન લેવા માટે અહીં આવી છું. પૃથ્વી પરના દરેક જીવો માણસ માટે કેટલા જરૂરી છે. જે રીતે આપણે આડેધડ, એટલે આમ તમે જુઓ તો આપણે ત્યારે એવું થાય કે વૃક્ષો વાવીએ છીએ, ગાય, પણ એકચ્યુઅલી એની જમીન આપણે પચાવી પાડી છે, એટલે હવે એનું પાછું આપણે આપવા માટેની આખી જે નેમ મહેન્દ્રભાઈ ઉપાડી છે. મહેન્દ્રભાઈને હું વર્ષોથી ઓળખું છું, જોઉં છું. એટલે જરૂરી નથી કે કોઈ વ્યક્તિ સંત બને, સાધુ બને ને વસ્ત્રનો કરીને સંસારને ત્યાગી દે. આ જગતમાં એવા સાધુઓ પણ મહેન્દ્રભાઈ જેવા છે કે જે જગતના ચોકમાં રહીને નાના પ્રાણીથી લઈ, જીવથી લઈ શિવ સુધીની પરિકલ્પના કરે છે, જેનો વિચાર કરે છે. એમણે જે મોરનો પણ વિચાર કર્યો છે તો ગાયનો પણ વિચાર કર્યો છે. તમે મહેન્દ્રભાઈને મળો તો તમને કોઈ દિવસ એવું નહીં કે અમારા દીકરાને બહુ નામ છે ને અમારી દીકરી નામ છે, તમને એમ કહે છે કે ઓલી અમારી ગાય છે ને એનો પગ ભાંગી ગયો હતો, અમારે ઓલું છે ને ત્યાં વૃક્ષ હમણાં ઓલા થઈ ગયા હતા. તો એની પાસે વાત છે સકલ વિશ્વની છે. અને ભારત તો એક એવી સનાતન પરંપરામાંથી આવે છે કે જેને વિશ્વને આખું કુટુંબ કીધું છે. આપણે ત્યાં દરેક ધર્મની અંદર તમે જુઓ તો રામાયણમાં જુઓ તો આપણને દેખાય કે જટાયુનું પાત્ર દેખાડીને આપણને ભગવાને કીધું કે આ પણ તમારી હારેનો છે. કૃષ્ણની વાત કરીએ તો એણે ગાયોની સાથે દોસ્તી કરીને, આપણે ત્યાં એવા રાજા મહારાજાઓ થઈ ગયા છે કે જેણે ગાયનું બલિદાન સિંહ માટે મારણ હોય તો પોતાનું શરીર, દિલીપ રાજા જેમાંથી આખી રામાયણની પરંપરા આવી, એ આખી વાત છે. આપણે ત્યાં તકલીફ એ થાય છે કે ધર્મો અને શાસ્ત્રોને વાંચવામાં આવે છે, જીવવામાં નથી આવતા. મહેન્દ્રભાઈ જેવા લોકો આજે અભયારણ્ય ઊભા કરે છે એ માત્ર ધર્મને વાંચવાનું નહીં, ધર્મને તમે જીવી કઈ રીતે શકો એનું આખું ઉદાહરણ છે. આજે અનેક કાર્યક્રમો છે, વૃક્ષારોપણ થવાના છે, ગાયોની અલગ અલગ વાતો થવાની છે. હું પણ થોડી વાત કરવાની છું. સાચા અર્થમાં સેવા થકી આપણે ઈશ્વરને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, આ બધા આધુનિક યુગના મંદિરો છે જેમાં દરેક વ્યક્તિ આવવા જેવું છે. भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र एंकरवाला अहिंसा धाम, ये हमारा तारीख 27-28 जून 2026 में 2 दिन का अहिंसा सम्मेलन था. उसके अंदर पूरे भारत भर में से विविध महानुभाव अहिंसा धाम में हमारे साथ जुड़े. अहिंसा के ऊपर 2 दिन के सम्मेलन में 70 से 75 संस्थाएं आई, अलग अलग जगह से, पूना से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से. तो ऐसे लोग जुड़े और हमारा नंदी सरोवर का जो 600 एकड़ विभाग है उसमें हम लोग पशु पक्षी पर्यावरण के ऊपर संस्था काम कर रही है. और ये साल 27 तारीख को जून को हमने एक गाय के लिए एक गोकुल धाम के अंदर गायों के संवर्धन के लिए बहुत बड़ा एक शेड बनाया, गोदाम बनाया, आदमियों को रहने के लिए व्यवस्था की. उनके जो दाता थे उनका सारे बहुमान और हुआ. और 2 दिन के सम्मेलन के अंदर हमारे मुंबई से हाई कोर्ट के जज साहब के तातेड़ साहब, अंबादास जोशी, गुजरात हाई कोर्ट के पीपी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े. और लतेश शाह जी और चित्कार जो नाटक था, सुजाता मेहता, बहुत फिल्म में बहुत बड़े आगे है, वैसे लोग भी जुड़े. और अलग अलग NGO से अलग अलग लोग आए, सबको हमने सुना, सबको हमने 3-3 मिनट 5 मिनट तक समय दिया था. पर्यावरण और पशु पक्षी के ऊपर सारे बहुत सारे विचार हमको भी जानने को मिला. और हमारी संस्था जो है अहिंसा धाम साल में 2 प्रोग्राम करती है. और इसके अंदर जो पूरे भारतवर्ष में से लोग आते हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मिलाते हैं, एक दूसरे को संस्था को कैसा अनुदान, किसको ज़रूरत ज़्यादा है उसमें हम लोग सहयोग करते हैं.
और पूरे भारतवर्ष में कोई दुखी न रहे। सारे लोग जीवन सृष्टि के जीव से लेके सारे आदमी से लेके सारे लोग कैसा सुखी होए, उसके ऊपर सारे लोग का, हमारा दाताओं का हमारा ध्यान और सारा इस विषय पे काम करते हैं। तो ये बहुत सारा एक दूसरे को मिलके हमने जो लास्ट 25 साल से ये काम किया है, तो जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम अहिंसा धाम में छोटे थे जब आए थे और ये समझा, फिर हमने हमारे पास जाके ये संस्था खड़ी की और हमारा ये जो इतना बड़ा ग्रुप बना है, इतना बड़ा 600 एकड़ में डेवलपमेंट है, वो देख के लोगों को जो सोच रहती है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है और लोगों को काम करने में इजी होता है। कोई भी संस्था का अलग अलग विषय पकड़ लो तो सारा लोग इसके अंदर जुड़ते हैं। हमारी वेटरनरी जो हॉस्पिटल है, वो वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर इतने अलग अलग टाइप के जानवर आते। आज भी सुबह हमने एक एक घंटे में एक्सीडेंट केस होते। हमारे साथ बहुत गेस्ट लोग थे, आप 3-4 गाड़ी लाइन से खड़ी थी। किसी के ऊपर एसिड डाला है, किसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, किसी का बच्चा फंस गया है। तो हमारे यहाँ वेटरनरी की बहुत बड़ी टीम है, वो टीम इसको अच्छी तरह उसकी ट्रीटमेंट करती है। और यहाँ पे गुजरात के जितने वेटरनरी कॉलेज हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट, कल ही एक नातीवाड़ा से 14 लोग या 15 लोग की टीम आई यहाँ पे और वो लोग भी यहाँ 15 दिन का इंटर्नशिप लेते हैं और सीखते हैं। यहाँ उनके लिए रहने की हमारी व्यवस्था है, खाने पीने की कम रेट में सुविधा है। तो अहिंसा धाम हर तरीका सृष्टि का सारा काम करती है और सबको कैसा आगे बढ़ने का मौका मिले, ये ऊपर काम अहिंसा धाम कर रही है। तो आप सारे लोग पत्रकार मित्रों भी इसके अंदर सहयोग देके अच्छा में अच्छा सब कैसा सहयोग मिले और लोगों के सब तक पहुँचे, ऐसा मेरा एक आपको निवेदन है। अब तो आप भी हमको सहयोग करें और सारे लोग भारतवासियों अहिंसा धाम देखने के आइए और अच्छा काम में जुड़े, ऐसा मैं विनंती करता हूँ। अहिंसा अवार्ड जो हाँ दिया प्रभु, जाता है उसके बारे में अभी आज के प्रोग्राम में हम 27 तारीख को 4 अवार्ड दिया। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। तो एक नेहलबेन गढ़वी को अवार्ड दिया। क्यों दिया कि नेहलबेन गढ़वी एक स्पीकर है, इसके लिए नहीं। नेहलबेन गढ़वी एक टीचर है और 283 बच्चे लोग को, मंद बुद्धि के लोग हैं, उनको भावनगर में खुद का आश्रम बना के वो संभाल रही है और हम लोग ने भी आज उनको अनुदान दिया, तो अनुदान से उनकी संस्था चलती है। तो इसके लिए नेहलबेन गढ़वी का भी बहुत अच्छा विचार है, बहुत प्रवास रहता है और ऐसा काम करती है। और दूसरा एक अवार्ड दिया जो भुज की राम रोटी आश्रम था, वो हम 40 साल से वो लोग सेवा करते, फ्री ऑफ अनाज देते थे। अभी उन्होंने 10 रुपया, अभी भी फ्री में भी देते हैं, फिर भी उधर के बच्चे लोग कॉलेज स्कूल में आते हैं। भुज अपना एक महानगर कच्छ का एक सिटी है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे 10 रुपया से लेके 20 रुपया और 30 रुपया का नॉमिनल चार्ज में उनको खाना मिलता है। लगभग रोज के 500 लोग खाना खाते हैं और फ्री वाले भी लगभग 100 लोग डेली हम लोग देख के आया, तो उनको अवार्ड दिया। दूसरा एक बंदा जो है वो पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण के ऊपर निकल पड़ा है, 2.5 साल से साइकिल से घूम रहा है और उसका पूरा मध्य प्रदेश से है, उसका जीवन पूरा उसमें समर्पित हुआ। ऐसे को एक भाई को भी आज हमने मिश्रा करके था, उनको भी हमने अवार्ड दिया। तो ऐसे अवार्ड दिया। और एक अंधजन का एक काम करते हमारे मुंबई के दृष्टि फाउंडेशन करके भरत भाई को, उसको भी एक अवार्ड दिया। ऐसे आज 4 अवार्ड थे हम लोगों को। ऐसा जो लोगों को पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं संस्था के, और इसमें से जो काम करता है उसको थोड़ा ऐसा मोटिवेशन मिले और थोड़ा ऐसा एनकरेज होए और एक दूसरे संस्था को जाने, ऐसे लोग काम करता है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम, वंदे मातरम, जय जिनेन्द्र। आज बहुत सारे लोगों ने बोला ये यूनिवर्सिटी का काम, तो अहिंसा धाम लास्ट 25 साल से यही काम करती है। मैं पूरा भारत घुमा, भारत के अंदर रोज प्रतिदिन बहुत बड़े लोगों से मेरा मिलना हुआ। विनोबा भावे का जो शिष्य था प्रथम, अच्युत काका, जो देवनार कत्ल खाने के अंदर रोज का आंदोलन में रहता था, रोज उनको जेल होती थी, कस्टडी होती थी। 22 साल तक बड़ा आंदोलन चला, उसके साथ में भी मैं रहा और सर्वोदयवादियों से साथ में रहा, बहुत सारा जाना। बहुत राजीव दीक्षित के साथ में रहा, वो भी हमारे आता था तो मैं उसको पूरा कच्छ जब भी 25 साल पहले घुमाया। तो ऐसे सारे लोगों से समझा हम कि क्या चाहिए हमको। तो हमने 35 साल पहला मेरी टीम और हम लोग ने साथ में मिलके ये ऐसी प्रशिक्षण तो बने, कितनी गौवंश 1000, 2000, 5000, 10,000 संभाला, पांजरापोल गौशाला, ठीक है, लेकिन बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को कैसा संस्कार मिले। जब से ये अहिंसा धाम ने म्यूजियम बनाया है,
प्रदर्शनी बनाई है, एक ऑडिटोरियम है, ऐसी सीढ़ी बनाई 35 साल पहले। और वो यहाँ बच्चे लोग साल में 125 स्कूलें आती है, 25,000 बच्चे उसमें हैं और रोज प्रतिदिन 250-300 बच्चे आते हैं। हॉलीडे में 400-500 लोग हो जाते हैं। कहाँ कहाँ से आते, और ये देख के हमारी एक यूनिवर्सिटी जैसा उनको नॉलेज मिलता है। और साल में 5,000 2,500 बच्चे और 2,500 आदमी लाइफ टाइम मांसाहार छोड़ते हैं, शाकाहारी बनते हैं, पर्यावरण प्रेमी बनते हैं। छोटे छोटे जानवरों को, बिल्ली से लेके कुत्ता को लोग को संभालने की, उनमें जीवन की एक पद्धति बनाते हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जैसा छोटा काम करता है। और अभी 10 लाख पेड़ लगा रहे हैं, तालाब बनाया, और तालाब में लास्ट हमारा 25-27 साल से फुल पानी रहता है 35 एकड़ में। 3 साल बारिश नहीं गिरे तो भी पानी खलास नहीं होता है, उसमें भी मगरमच्छ आ गए। तो ये यूनिवर्सिटी जैसा काम करता है, लोगों में विश्वास होता है कि हाँ पानी है, तालाब रहता है और पानी नहीं है तो विश्वास नहीं आएगा। लेकिन हमारा प्रभु जी ने हमारे को तालाब में कभी पानी सूखने नहीं दिया है, पानी हमेशा रहता है, रोज वापरने के बाद भी रहता है 3-4 साल। तो ये एक यूनिवर्सिटी जैसा अहिंसा धाम काम कर रही है, उसको भगवान की कोई प्रेरणा है या कोई शक्ति है, हम तो मात्र निमित्त है। धन्यवाद। संस्था के माध्यम से आप क्या करते हैं? कच्छ वासियों को मैं यही देना चाहूँगा कि कच्छ का इतना सब डेवलपमेंट है, इतना डेवलपमेंट है, आप विकास करो लेकिन विनाश न हो जावे आदमी का, और हॉस्पिटलें ज़्यादा खड़ी न करनी पड़े ऐसा समझ के विकास करो। नहीं तो दुनिया की बहुत सारे देशों के अंदर इंडस्ट्री कोई जो नुकसान करती है, हैजार्डस है, जो आदमी के हेल्थ के ऊपर नुकसान करती है, वो बैंड है। वो खुद की स्टेट में, खुद की यहाँ कंट्री में इंडस्ट्री डालने नहीं देते हैं। तो हमारे कच्छ के अंदर भी ऐसी कोई आदमी मारने वाली और हमारी भविष्य की पीढ़ी को नुकसान करने वाली इंडस्ट्री ना आवे, ऐसी मैं सरकार से विनती करता हूँ, अपील करता हूँ। और ये हमारी एक सोच है, और सारे लोगों को ये एक निवेदन करता हूँ कि अच्छी इंडस्ट्री आवे। उस विकास के साथ हम लोग भी सहयोगी है, साथ में है, लेकिन कहीं हमारा आने वाली पीढ़ी को नुकसान न हो जाए, इसका भी साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा केमिकल जोन अलग करना पड़ेगा, ऐसा नुकसान करने वाली, और इंडस्ट्री आने से नीचे पानी ट्रैवल करता है और सीधा कैंसर और ऐसी बड़ी बीमारियां होती है, वैसी इंडस्ट्री ना आए, ऐसी मैं सरकार को नम्र निवेदन करता हूँ, नम्र अपील करता हूँ। हमने 15 साल पहले कोक के सामने विरोध किया था, मेनका गांधी भी आई थी, बहुत सारे लोग ने हमको सहयोग किया था, उसमें भी बहुत सारा हमारे मुंद्रा तालुका को फायदा हुआ है कि इसके बाद में कोक कंपनी नहीं आई है। तो मैं आने वाले दिनों में भी कहता हूँ कि मुंद्रा तालुका या कच्छ है, कहाँ भी ऐसी केमिकल कंपनी जो ज़्यादा नुकसान करती हो, इसका एक जोन बने, और जोन में ही रहे और दूसरी जगह नहीं आवे, ऐसा नम्र निवेदन करता हूँ। वंदे गौ मातरम। महेंद्र संगोई, अहिंसा धाम, कच्छ। गौ मातरम। अहिंसा धाम पशु रक्षा केंद्र मुंद्रा कच्छ थी हरेश वोरा। 27 तारीख यानी 28 जून 2026 इस पर्यावरण के सम्मेलन में मुंबई, नवी मुंबई, थाने और विविध क्षेत्रों से पधारे हुए सभी मेहमान, चीफ जस्टिस साहब तातेड़ साहब, अंबालाल भाई जोशी અને पीपी जट साहब सब पधारे थे। तो ये 2 दिन का सम्मेलन बहुत ही अच्छी तरह पूरा हुआ है। संस्था का विभाग नंबर 8 गोकुल धाम जो शुरुआत हुआ है, वहाँ 300 से 400 पशुओं को रखा जाएगा और उनकी देखभाल करी जाएगी। और अभी दिन प्रतिदिन 300-400 एकड़ ज़मीन जो एनए हो रही है, और एनए होकर उधर कंस्ट्रक्शन या दूसरा जो भी काम हो रहा है, तो पशु पक्षी को निर्भयता से रहने के लिए जगह नहीं है। तो इसके लिए आप पशु पक्षी और पर्यावरण का जतन करिए, ये सभी को हमारी तरफ से और महेंद्र भाई की तरफ से आपको सभी को नम्र निवेदन है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अहिंसा धाम पशु रक्षा केंद्र मुंद्रा कच्छ। भारत माता की जय। नारायणभाई गढ़वी, देसलपुर प्राथमिक शाळा। दर वर्षे अमे आ अहिंसाधाम प्रागपुर मध्य अमे बाळकोने लईने आवीए छीए। खरेखर आ एक गौशाळा नहीं पण एक मंदिर है। हूँ दरेक सरकारी स्वनिर्भर और ग्रांटेड शाळाओना तमाम कच्छ गुजरातना शाळाओना आचार्यों ने शिक्षकों ने एक अपील करूँ छूँ कि आप पण आपना विद्यार्थीओं ने लईने आ अहिंसाधामनी अवश्य मुलाकात लेशो। कारण के જ્યારે સમગ્ર દુનિયામાં આપણને નકારાત્મકતા લાગે ત્યારે એકવાર અહીં જો અહિંસાધામમાં આપણે આવીએ તો અહીંયાનું જે વાતાવરણ છે, બાળકોને શિક્ષણમાં ગાયનું મહત્ત્વ, જેમ દયાનંદ સરસ્વતીએ કહ્યું હતું કે વેદો તરફ પાછા વાળો, તેમ અહિંસાધામ આપણને એવું કહે છે કે ગાયો તરફ પાછા વાળો, પ્રકૃતિ તરફ પાછા વાળો, સજીવ ખેતી તરફ પાછા વાળો, પર્યાવરણનું રક્ષણ કરો। અને આ પાઠ, આ સંસ્કાર આ બાળકોને મળે નાનપણથી જ, એ હેતુને, એ આશયને લઈને
અમે દર વર્ષે અહીં આવીએ છીએ અને ખૂબ અહીં મજા પડે છે. આ એક ફક્ત ગૌશાળા નથી, આ એક મંદિર છે. તો ફરીને હું નમ્ર બધાને અપીલ કરું છું કે આપ પણ અહિંસા ધામ પધારો. જૂના સમયમાં એક એવી કહેવત હતી કે બીજ માવડી ચૂલે તાવડી, બે ગોધા ને એક ગાવડી દેજે. તો આવું ગાય પ્રત્યેનું વલણ તો જ કેળવાય, અને એ માટે કાર્ય કરેલા અહિંસાધામ પ્રાગપુરના દાતા ટ્રસ્ટીઓ મહેન્દ્રભાઈ સંગોઈ, હરેશભાઈ, ગિરીશભાઈ નાગડા, રાહુલભાઈ, આ બધાનો જ અમને ખૂબ સહકાર મળે છે. અમે પણ અમારા લાયક ભવિષ્યમાં કંઈ પણ કામ હશે તો અમે ખડે પગે તૈયાર રહીશું અને ગૌ માતાની સેવા માટે જે પણ અમારાથી બનતું થશે અમે કરશું. અમે પ્રાથમિક શાળાની અંદર પણ બાળકના જન્મદિવસની ઉજવણી અમે ગૌગ્રાસ કાઢીએ છીએ. બાળક પોતાની યથાશક્તિ અનુસાર આર્થિક રૂપિયા આ ગૌશાળા માટે કાઢે છે. આજે પણ પોતાના જે જન્મદિવસના રૂપિયા હતા એ ફૂલ લઈને ફૂલની પાંખડી 2511 રૂપિયા એના જન્મદિવસના 6 મહિનાના ભેગા કરેલા આજે અમે અહીંયા જમા કરાવેલ છે. એટલે ફૂલ લઈને ફૂલની પાંખડી અમારાથી જે પણ શક્ય બનશે આ સંસ્થા માટે અને ગાયો માટે, પ્રકૃતિ માટે, પર્યાવરણ માટે અમે કરવા કટિબદ્ધ છીએ. જય ગૌ માતા.